السلام علیکم۔ روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدثر بساط خان اور میں ہوں عینی خان۔ روز نگر کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کے خلاف یوم استحصال کشمیر کے موقع پر وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان اور وزارت خارجہ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام، مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری، آل پارٹی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام نبی صفی زمرد خان، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور وزارت خارجہ کے افسران سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے رضا بن مصطفیٰ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ ڈی چوک اسلام آباد میں یوم استحصال کی تقریب سے خطاب اور روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے۔ آج کے دن کا اہمیت ہے کہ دشمن کو میسج دینا ہے کہ آپ کی 5 اگست 2019 کا ایک طرفہ عمل نہیں مانتے۔ جب تک کشمیریوں کی حق نہ دے دے، ان سے نہ پوچھا جائے، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت یہ کاز زندہ رہے گا۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس انڈیا نے اپنے آئین میں تبدیل کیا، اور آج نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستان کے ہر شہر اور جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں، ہر جگہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان اور دیگر کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آج سے 7 سال قبل جموں کشمیر کے اندر بھارت نے کرفیو لگا کے وہاں کے جتنے بنیادی رائٹس تھے، بچوں کے، خواتین کے، بزرگوں کے، سب وہ ختم کر دیے، اور یقیناً پاکستان کے اندر ہر سال یہ بڑا اجتماع پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے تجدید عہد کا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ کشمیر جو ہے وہ شروع سے ہی پاکستان کا حصہ تھا، اور انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کریں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ یہی کہوں گا کہ کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ رہے گا۔ یوم سیاہ کے موقع پر وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک سیکرٹری خارجہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جبکہ احتجاجی جلسے سے حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کیمرہ مین محمد رسلان کے ساتھ رضا بن مصطفیٰ، روز نیوز، اسلام آباد۔ راولپنڈی کینٹ بورڈ کی جانب سے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بینک روڈ پر یکجہتی واک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ واک میں کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران اور ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ واک میں ایڈیشنل ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ضیاء حسین، سیکرٹری راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ عمران حبیب سمیت دیگر افسران اور عملہ شریک ہوا۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ شرکاء نے کشمیری عوام کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ضیاء حسین نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، ان کے حق خود ارادیت کی حمایت اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام اور ادارے اپنی کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کشمیری عوام کے ساتھ اپنی بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ایڈیشنل ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ اور دیگر افسران نے ڈی چوک اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں منعقدہ مرکزی تقریب اور یکجہتی واک میں بھی شرکت کی ہے۔ ملک بھر کی طرح پاکستان بھر میں بھی یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ 2019 میں بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت منسوخ کر دی تھی۔ تفصیلات لاہور سے عدیل شجاع کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
5 अगस्त वो दिन जिसे कश्मीरी आज भी सयाह दिन के तौर पर याद करते हैं। 2019 में भारतीय हुकूमत में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत खत्म करते हुए आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया था। इस फैसले के बाद रियासत को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की 2 विफाकी इकाइयों में तकसीम कर दिया गया, जबकि वादी में सख्त पाबंदियां, इजाफी सिक्योरिटी, मुवासलाती बंदिश और गैर मामूली हिफाजती इकदाम नाफिज किए गए। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर को अपना आइन, अलग झंडा और दाखिली मामलात में खुसूसी इख्तियारात देता था, जबकि आर्टिकल 35A मुकामी आबादी के रोजगार, जमीन और दीगर खुसूसी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक था। इन दफात की मनसूखी के फैसले ने न सिर्फ वादी की सियासी और आईनी हैसियत को तब्दील किया, बल्कि इस पर शदीद रद्द अमल भी सामने आया। भारत ने तो खसूसी हैसियत खत्म कर दी है, लेकिन हम लोग अभी भी उसके मकबूजा कश्मीर के साथ हैं, तो इसलिए हम ये 5 अगस्त मनाते हैं। आज 5 अगस्त है। कुछ वक्त था जब पुरअमन था, लेकिन कश्मीर इंडिया का जुल्म और सितम, लेकिन हम कश्मीरियों के साथ हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान, खास करके पाकिस्तानी है, आज का 5 अगस्त वो मनाते हैं। 5 अगस्त का दिन हर साल कश्मीरियों के लिए इनकी शनाख्त, हकूक और मुस्तकबिल से जुड़ी एक अहम तारीख के तौर पर याद किया जाता है। आज भी वादी के अवाम अपने हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की उम्मीद के साथ आलमी बरादरी की तवज्जो के मुंतजिर हैं, जबकि यौम इस्तेसाले कश्मीर पाकिस्तान भर समेत दुनिया भर में तमाम मुसलमान इसको एक सयाह दिन के तौर पर मनाते हैं। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। और आज मुल्क भर समेत दुनिया भर में यौम इस्तेसाले कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुसूसी हैसियत तो ख़त्म कर दी गई थी, मगर पाकिस्तानी अवाम और मुसलमानों के दिल खुसूसी तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद के साथ धड़क रहे हैं। कैमरामैन खालिद रमज़ान के साथ अदील शुजा, रोज़ न्यूज़, लाहौर। यौम इस्तेसाले कश्मीर के मौके पर ज़िला चकवाल में मज़लूम कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। इस मौके पर ज़िला और तहसील हेडक्वार्टर्स में रैलियों का इनेकाद किया गया है। तफसीलात चकवाल से मोहम्मद खान आकिल की इस रिपोर्ट में। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर की तरह ज़िला चकवाल में भी मज़लूम कश्मीरियों और आवाम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। इस मौका पर ज़िला तहसील हेडक्वार्टर में रैलियों का इनेकाद किया गया, जबकि ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे तमाम मरकजी यकजहती रैली डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल में मुनक़द हुई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल डॉक्टर अरसलान सिकंदर ने की। रैली में चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मोहम्मद फयाज हाशमी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी वसीम अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर वसीम अब्बास बलोच, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अतीक अहमद खान, सिविल डिफेंस पैरा फोर्स सुथरा पंजाब वासा और प्रिंसिपल DPS मोहम्मद नदीम सरवर, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, एहलकारों, सदर पाकिस्तान लेबर फेडरेशन चकवाल में रियाज मलक, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे और भारत के गैर कानूनी इक़दाम, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी अवाम पर जारी मज़ालम शदीद मजम्मत की। रैली के शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की अहमियत में नारे बुलंद किए और इस इज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान की पूरी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हर सतह पर खड़ी है। इनकी मुनसिफाना जद्दोजहद की सियासी, सफारती और इखलाकी अहमियत जारी रखेंगे। रैली के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अरसलान सिकंदर, रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज डॉक्टर अतीक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आज से कुछ साल पहले इंडिया ने एक इलीगल अमेंडमेंट करके उनको उनके स्पेशल स्टेटस से डिप्राइव करने की कोशिश की, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी थी। तो हम कश्मीरियों के साथ हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। वहाँ पे जो मजालिम हो रहे हैं उनको जो उनके हकूक से किया जा रहा है वो ख़त्म होना चाहिए और वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ कश्मीर। हम कश्मीरी भाइयों के साथ और पाकिस्तानी अफवाज के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक हम इसी तरह अपने यहाँ मुसम्मम इरादे के साथ डटे रहेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम इस्तेसाले कश्मीर के तौर पर मना रही है और 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन था कि जिस दिन भारत की तरफ से उनके बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक को यकतरफा तौर पर मुस्तरद करते हुए उनको
जो है ना ब्लैक डे के तौर पर उनको जो है ना उनका मुस्तकबिल उसको मजरू किया गया और वहाँ वायलेशन इंसानी हकूक़ की जो है की गई। हम इसकी बरज़ोर मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों के साथ हैं इंशाअल्लाह। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खान आकल, रोज न्यूज़ चकवाल। सियालकोट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कचहरी चौक पर मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक थे। शुरका ने भारत मुखालिफ नारे लगाए और मसलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। तकरीब का अहवाल जानते हैं सियालकोट से महविश मुस्तकीम की इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2019 वो स्याह दिन जब भारत ने कश्मीर की रियासती हैसियत छीनकर इसे जेल बना दिया। शहर इकबाल सियालकोट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर जोशो जज्बे से मनाया गया। मरकजी तकरीब कचहरी चौक पर मुनक्किद हुई जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक थे। तकरीब में कश्मीरी रहनुमाओं, उस्ताज़ा, तुलबा, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक का कहना था कि ये दिन 5 अगस्त 2019 में जो हिंदुस्तान ने एक तरफा एक फ़ैसला करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर किया था और उसकी आइनी हैसियत को जम्मू और कश्मीर की तब्दील किया गया था, उसके ख़िलाफ़ एक तरह का प्रोटेस्ट और पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। इस मौका पर कचहरी चौक से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। शुरका ने रैली के दौरान कश्मीर की आज़ादी और हक खुद इरादत के हक में नारेबाजी की और कश्मीरियों की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। महविश मुस्तकीम, रोज न्यूज़, सियालकोट। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्ट की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली के हवाले से बता रहे हैं फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने की। रैली में असातिज़ा, तुलबा, अफसरान और दीगर मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। रैली में शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम की हमायत और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के दौरान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने कहा कि यौम इत्तेसाल कश्मीर हमें 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से कश्मीरी हसीयत को ख़त्म करने के भारतीय इक़दामात की याद दिलाता है। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। इनकी जद्दोजहद और इंसानी हकूक़ की हमेशा सियासी, सफारती, अखलाकी हमायत जारी रखेंगे। इन्होंने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ताहिर, रोज न्यूज़, फैसलाबाद। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर डस्का में भी भारत के गैर कानूनी और जाबराना इक़दाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का सादिया जाफिर की क़यादत में रैली निकाली गई जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात राना मोहम्मद अफजल की इस रिपोर्ट में देखिए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर डस्का में भी कश्मीरी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। इस सिलसिले में एक बड़ी और पुरवकार रैली निकाली गई जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डस्का सादिया जाफर और सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर मोहम्मद अफजल मंशा ने की। रैली का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से हुआ जो अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई बैंक रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में जिंदगी के हर शुबा से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मकबूजा जम्मू व कश्मीर के नहते अवाम पर ढाए जाने वाले मजालम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती बका और खसूसन कश्मीरी अवाम की जल्द आज़ादी और हक़ खुद अरादियत के हसूल के लिए खसूसी दुआ भी की गई। राना मोहम्मद अफजल, रोज न्यूज़, डस्का। ननकाना साहब में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर तकारीब और रैलियों का इनेकाद। मरकजी तकरीब में अरकान पंजाब असम्बली, ज़िला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए।
जिलाई इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसल हाल से गुरुद्वारा जन्मस्थान तक यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई, जिसमें अरकान पंजाब असम्बली, डिप्टी कमिश्नर राना हमीद समेत जिलाई अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सिख, हिंदू, मसीही रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक खुददारियत के हक में नारे दर्ज थे। 5 अगस्त 2019 को जिस तरह मोदी गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल और 35(1) वहाँ खात्मा किया और मकबूजा कश्मीर की जो इंडिपेंडेंट हैसियत थी वो ख़त्म की, वो बहाल होनी चाहिए। आज हम कश्मीरियों के साथ हैं। मैं इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसल हाल में यकजहती कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िलाई अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौका पर तलबा व तालबात ने हसूल आज़ादी के लिए कश्मीरियों की कुर्बानियों और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज के बेईमाना मज़ालिम को उजागर करने के लिए तकारीर और मिली नगमे पेश किए। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इस अदम का इज़हार किया कि वो भारत की तरफ से कश्मीर की आइनी हैसियत खत्म करने के फैसले की वापसी और जद्दोजहद आज़ादी के असूल तक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने सदियों से जो एक कश्मीरियों के हकूक़ इस्टेब्लिश थे सारी दुनिया में, जो कि तस्लीम शुदा थे, उनसे उनको महरूम किया गया, उनके एहतजाज किया गया। तमाम स्कूलों के अंदर तलबा को ये मैसेज दिया गया कि हम कश्मीरी जो हैं वो कश्मीर हमारी शहर है और कश्मीरी हमारे बहन है, भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तकारीब के दौरान पाकिस्तान की तरक्की और सलामती, अमन व अमान और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ताहर महमूद, रोज़ न्यूज़, ननकाना साहब। बात करें मियांवाली की तो यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के सिलसिले में रैली और तकरीब का इनेकाद। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया ने की। तफसीलात मियांवाली से अशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीरी अवाम से यकजहती के इज़हार के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली के सब्ज़ाज़ार पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मिली नगमे पेश करके शुरका के लहू को गरमाया। जबकि डिप्टी कमिश्नर मियांवाली शाहिद अब्बास काठिया ने अपने खिताब में कहा कि आज के दिन इंडिया ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू व कश्मीर की आज़ादाना हैसियत ख़त्म कर दी थी, जिसकी पाकिस्तानी कौम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। कबल अज़ीं कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और वहाँ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ GPO चौक से कमेटी चौक तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान, महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122 के अलावा स्कूलों के तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका रैली ने रोज़ न्यूज़ से बात करते हुए कहा, भारत कश्मीर के साथ जो इस्तेहसाल कर रहा है, हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि उनको उनका हक़ खुद इरादियत दी जाए और हम इस सब चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। और पैगाम देना चाहते हैं आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों को कि हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचमों के अलावा बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस उठा रखे थे, जिन पर इंडिया के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ नारे दर्ज थे। जैसा कि आपने शुरकाए रैली की बात सुनी, शुरकाए रैली ने इंडिया की तरफ से कश्मीर पर गासिबाना कब्जे को कश्मीरियों का इस्तेहसाल करार देते हुए अक़वाम आलम से मुतालबा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिला के दें। कैमरामैन नवीद इकबाल के साथ इशफाक अहमद, रोज़ न्यूज़, मियांवाली। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर DC ऑफिस में पुरवकार तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तफसीलात ओकाड़ा से मंशा नवीद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर DC ऑफिस ओकाड़ा में पुरवकार तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा मोहम्मद इकराम मलिक ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसके बाद रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने की। रैली में लीगी रहनुमा चौधरी फयाज जफर, सदर बार फारूक अशरफ, ज़िला इंतज़ामिया, दीगर महकमों के अफसरान, ताजरान, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर के हक में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालम का स्याह दिन है,
गुज़िश्ता 7 सालों में भारत ने कश्मीरियों के इंसानी बुनियादी हकूक सलब कर रखे हैं। 5 अगस्त का जालमाना इकदाम भारतीय इकदाम कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों के गज़बशुदा हकूक की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जुलूसों और रैलियों के जरिए कश्मीर से भारतीय मुजालम के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालम का नोटिस ले। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय मुजालम के जरिए निहत्ते कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। निहत्ते कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी कामयाब होगी। शहीदों का लहू रंग लाएगा। जल्द कश्मीर में आज़ादी का नया सूरज तुलू होगा। कैमरा टीम फैसल नवीद और अदनान नवीद के साथ मोहम्मद मनशा नवीद, रोज न्यूज़, उकाड़ा। खानेवाल में जिले इंतजामिया की जांच से जिला कौंसिल हॉल में यौम इस्तेसाल कश्मीर के सिलसिले में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। स्कूल के बच्चों ने तकारीर और टैबलोस पेश किए। मजहर हुसैन शाहिद ने रिपोर्ट तैयार की है। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला खानेवाल में जिला इंतजामिया की ज़ेर सरपरस्ती जिला कौंसिल हॉल में यौम इस्तेसाल कश्मीर के सिलसिला में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। स्कूल के तलबा और तलबात ने तकरीर और टैबलो पेश करके कश्मीर की अहमियत को उजागर किया। सेमिनार और रैली में शुरका का भारतीय जुल्म और बर्बरियत पर मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया। डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद ने सेमिनार की सदारत की। MNA मोहम्मद खान डहा, सूबाई पार्लियामेंट सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद वड़ैज व दीगर अफसरान सेमिनार में शरीक हुए। शुरका ने मजलूम मकबूजा कश्मीर बहन भाइयों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर है और आज का दिन बेसिकली हम एक याद दहानी कर रहे हैं, हम यादा कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने किस तरह जम्मू और कश्मीर की आईनी हैसियत जो है वो तब्दील कर दी और उनके अवाम के हक़ खुद इरादियत को मसलने की कोशिश की। ये जो 5 अगस्त 2019 है ये सिर्फ एक रियासत की उसकी आईनी हैसियत बदलने का मामला नहीं है, बल्कि कश्मीरियों के इंसानी हकूक और उन पे जबर तशद्दुद की एक दास्तान है। तो आज का दिन है 5 अगस्त का, ये एक अवेयरनेस का है कि जो कश्मीरियों के हकूक के लिए, जिस तरह कश्मीर में पहले भी जुल्म हो रहे थे इंडिया की तरफ से, इंडिया ने ऑक्युपाइड कश्मीर में जितनी जानें ली, चाहे बच्चे हों, औरतें हों, बुजुर्ग हों, तो ये है कि और दुनिया उस पर खामोश है। आज का दिन कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मजलूम की मजम्मत का दिन है। बाद में डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद की क़यादत में रैली भी निकाली गई। कैमरामैन टीम के साथ मजहर हुसैन शाहिद, रोज न्यूज़, खानेवाल। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर, तहसील इंतजामिया और बल्दिया कमेटी की जानिब से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में ताजर हजरात, मजदूर और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तफसीलात फरमान हैदर की इस रिपोर्ट में। हरुणाबाद में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर और तहसील इंतजामिया ने की। रैली में शुरका ने पाकिस्तानी परचम के साथ कश्मीरी परचम थाम कर कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की। रैली बल्दिया हाल से अबू बकर सदीक फुहारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, तालिब इल्मों, सहाफ़ियों, ताजरान, समाजी कारकुन और वर्कर्स ने भी शिरकत की और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानियत पर मबनी किरदार के मुताबिक हल करने की तजवीज़ को बाअमल बनाने और मकबूजा कश्मीर के भाइयों का कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल करने पर जोर दिया। तकरीब के आखिर में उम्मत मुसलमा खुसूसन मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन राय अब्दुल गफार खरल के साथ मलिक फरमान, हैदर खोखर, रोज न्यूज़, हरुणाबाद। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर सरगोधा में भी जिले इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO सरगोधा ने की। शुरका की जानिब से मजलूम कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। तफसीलात सरगोधा से तसव्वुर मलियाना की इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की जानब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और कश्मीरी अवाम पर जारी मजालिम के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर कमिश्नर सरगोधा डिवीजन हाफिज शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी की क़यादत में रैली निकाली गई। तस्वीरी नुमाइश, सेमिनार और शजरकारी की तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौका पर DPO सरगोधा तौकीर मोहम्मद नईम, ADC म्यूनसिपल सर्विसेज मोहम्मद आतिफ, इंतजामी अफसरान, सरकारी मुलाजमीन, तलबा व तलबात और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी से हुआ। बादादा आर्ट्स काउंसिल कम्प्लेक्स से कमिश्नर सरगोधा हाफिज शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा
चौधरी और DPO सरगोदा तौकीर मोहम्मद नईम की क़यादत में रैली निकाली गई, जो DPO चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका पाकिस्तान और कश्मीरी परचम, बैनर और कतबे उठाए हुए थे, जिस पर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। शदीद गर्मी के बावजूद शुरका ने भरपूर जोश जज्बे के साथ भारत के खिलाफ नारेबाजी की और सरगोदा की फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुखालफ नारों की से गूंज उठी। कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर और DPO ने आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम की अक्कासी पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह भी किया और मुख्तलिफ तस्वीर का जायजा लिया। नुमाइश में मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया, जिससे देख कर शुरका आबदीदा हो गए। तकरीब के अख्तिताम पर कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी और DPO सरगोदा तौकीर मोहम्मद नईम ने आर्ट्स काउंसिल कम्प्लेक्स में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुल्क व कौम की तरक्की, इस्तेकाम पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के आवाम की जल्द आज़ादी के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ तसव्वुर मलियाना, रोज न्यूज, सरगोदा। मुल्क भर की तरह जिला घोटकी, मीरपुर, माथेलो में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी की हिदायत पर DC कॉम्प्लेक्स से कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें ज़िलाई अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों, असातिज़ा, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात सिकंदर अली सोमरो की रिपोर्ट में। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कररानी के अहकाम पर कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए DC कम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 बिशारत हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर माथेलो और दीगर ज़िले अफसरान ने की। रैली में महकमा सेहत के अफसरान समेत सियासी व समाजी शख्सियात, ताजिर बिरादरी, तलबा और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरका के हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम, बैनर और प्ले कार्ड से जिन पर कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत और उनसे इज़हार यकजहती के नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि 5 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के दुख, सब्र, कुर्बानियों और आज़ादी की लाजवाल जदोजहद की अलामत है। इन्होंने इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है और उनकी इखलाकी, सिफाती और सियासी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का मौसर नोटिस लिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलाने के लिए अमली और मौसर किरदार अदा किया जाए। शुरका ने इस अज़म का भी इज़हार किया कि कश्मीरी अवाम की आवाज़ को हर फोरम पर बुलंद किया जाता रहेगा ताकि इनकी जदोजहद आज़ादी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ती रहे। कैमरा टीम के साथ सिकंदर अली सुमरो, रोज न्यूज़, डहकी। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर जिला भावलनगर में रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया है। तफसीलात भावलनगर से दिलफराज राठौर की इस रिपोर्ट में देखिए। यौम इस्तेसाल कश्मीर 5 अगस्त के मौके पर जिला बहावलनगर में कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, DPO मोहम्मद इमरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद वसीम समेत ज़िले अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, तलबा और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ, जिसके बाद कौमी तराने की धुन पर सलामी पेश की गई। बाद अज़ा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, हक़ खुद इरादियत और भारतीय मुजालिम को उजागर करने के लिए एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें मुकर्रिर ने कश्मीरी अवाम के जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी हाल से रिक्शा चौक तक यौम यकजहती कश्मीर रैली भी निकाली गई, जिसमें शुरका ने कौमी परचम और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। कश्मीरी अवाम के लिए हक में नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह और DPO मोहम्मद इमरान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और पाकिस्तान हर सतह पर इनकी हक खुद इरादियत के इखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखेगा। कैमरा टीम के साथ दिलफराज राठौर, रोज न्यूज़, बहावलनगर। मुल्क भर की तरह डिग्री में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर टाउन कमेटी डिग्री की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी डिग्री बाबू मोहम्मद हनीफ आरई और असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री अख्तर अली लाशारी ने की है। तफसीलात डिग्री से वसीम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर डिग्री में एक पुरअज़म रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, सियासी व समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत वाइस
चेयरमैन टाउन कमेटी डिग्री बाबू मोहम्मद हनीफ अराई और असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री अख्तर अली लाशारी कर रहे थे। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की और मार्च पास्ट किया। योम इस्तेसाल कश्मीर रैली में DSP डिग्री खुदाबख्श थेबो, तालका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी स्कूल्स सर तेजाराम जेसानी, तालका एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी दुर मोहम्मद शालमानी समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इज़हार करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और पाकिस्तान हर सतह पर इनकी अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। इन्होंने कहा कि योम इस्तेसाल कश्मीर हमें इस अहद की याद दिलाता है कि हम कश्मीरी भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। रैली पुरअमन अंदाज में अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरती हुई इख्तिताम पजीर हुई, जबकि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम भी किए गए थे। वसीम कुरैशी, रोज न्यूज़, डिग्री। लाड़काना में ज़िले इंतजामिया की जानिब से योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में DC लाड़काना, एजुकेशन समेत दीगर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। अकबर अली जुनेजो की ये रिपोर्ट देखिए। लाड़काना में ज़िला इंतजामिया की जानिब से योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली DC लाड़काना, एजुकेशन समेत दीगर इंतजामिया के अफसरान व सिविल सोसाइटी ने बड़े तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने रोज न्यूज़ को बताया कि इस्तेसाल कश्मीर है। 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पे भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश की, जिसके खिलाफ कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम सरासर एहतजाज हैं और इस गैर कानूनी तसल्लुस से ना पहले 80 सालों में कभी कबूल किया है ना अब करेंगे। आज पाकिस्तान के हर ज़िले और शहर में पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीर भाइयों के साथ खड़े हैं और जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती तब तक इस जद्दोजहद में उनके साथ खड़े होंगे। मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हूँ और मैं इस टाइम चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज हमने ये इस रैली का जो इनेकाद किया है, इसका मकसद बेसिकली कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती है। जो हिंदुस्तान ने 2019 में 5 अगस्त 2019 में एक्ट 370A को ख़त्म किया और कश्मीर की जो कानूनी हैसियत थी उसको ख़त्म किया। आज हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि वो UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ उदरादियत की इजाज़त दे और इंशाअल्लाह जो हिंदुस्तान जो हम पे जुल्म सितम और बर्बरियत ढा रहा है, इंशाअल्लाह हम उसके बाद आवाज़ हमारी हमेशा बुलंद रहेगी और हमारे जज्बा आज़ादी को कभी भी वो दबा नहीं सकता। कैमरामैन टीम के साथ अकबर जुनेजो, रोज न्यूज़, लाड़काना। योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे, जबकि कश्मीर के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रहेगी। रैली में शरीक शुरका ने कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मसालिम का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। रैली में शरीक तलबा और शहरियों ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया और भारतीय मसालिम की मजम्मत के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की शारक रहा है और हमारे कायद का भी यही फरमान है। इसलिए जब तक कश्मीर की आज़ादी मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं हो जाती तब तक कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकाला, पाकिस्तान के ऑफिसर्स, पाकिस्तान की सोसाइटी का हर बच्चा उनके साथ खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर को इंडिया का जो एक तसल्लुत है उससे आज़ादी मिलेगी और वो पाकिस्तान का परमानेंट। मुल्क भर की तरह जेलम में भी 5 अगस्त योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारतीय मसालिम की मजम्मत के लिए रैली निकाली गई। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर, इंतज़ामी अफसरान, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, तलबा, ताजरों और सहाफ़ियों समेत तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम, बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत और भारत के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे।
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح عارف والا میں بھی یوم استحصال کشمیر پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عارف والا صوبیہ فلک راؤ کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سول سوسائٹی، محکمہ تعلیم سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صوبیہ فلک راؤ کا کہنا تھا کہ یوم استحصال کشمیر کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی، ان کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت اور بھارتی غیر قانونی تسلط جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ ریلی بلدیہ چوک سے شروع ہو کر جناح چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، ریسکیو 1122 اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران و اہلکاروں، نوجوانوں، بچوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جبکہ فضا کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارتی مظالم نامنظور کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ لیا میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام اسکول جو ہے وہ گورنمنٹ پبلک گرلز اسکول میں سیمینار منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں طلبہ نے کشمیر کے موضوع پر تقاریر، خاکے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ بعد ازاں DPS گرلز ونگ سے کشمیر چوک تک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر نے کی، جبکہ شرکاء نے کشمیر سے اظہار یکجہتی کے نعرے لگائے۔ رحیم یار خان میں انتظامیہ کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی۔ یوم استحصال کشمیر ریلی ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں سرکاری افسران، ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کا دن جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور عالمی برادری کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے، جبکہ پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت جاری رہے گی۔ ریلی کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی، ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاک پتن میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں انتظامیہ، افسران سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاک پتن میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر جنرل عمر سرور نے کی۔ آج کے روزنگر سے اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے روز نیوز۔